السلام علیکم دوستو، میزان ٹی وی کی طرف سے محسن خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سیکھیں گے MATLAB پروگرامنگ۔ جیسا کہ پریویس کلاس میں ہم نے MATLAB کے بیسک کے بارے میں سیکھا تھا، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے MATLAB کمانڈ ونڈو ورسز اسکرپٹ فائل۔ کس طریقے سے ہم اسکرپٹ فائل بناتے ہیں، ہمیں اسکرپٹ فائل بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور اسکرپٹ فائل کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم جائیں گے MATLAB اسکرپٹ فائل پروگرام کی طرف۔ ہم کچھ اسکرپٹ فائل پروگرام بنائیں گے، اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کریں گے۔ اسی پروگرام کو ہم سی کے ساتھ کمپیئر بھی کریں گے، جیسے کہ کمپیریزن وتھ سی اینڈ سی پلس پلس۔ تو ہم ہر ایک پروگرام کو، چاہے وہ ہم اسکرپٹ فائل پروگرام لکھیں گے، چاہے وہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لکھیں گے، ہر ایک کو جو ہے نا ہم سی کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ چلیے دوستو، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو کمانڈ ونڈو میں پریویس اگر آپ لوگوں کو لیکچر یاد ہو تو ہم نے کیا کیا تھا، ہر ایک لائن کو جو ہم رن کر رہے تھے تو لائن بائی لائن رن ہو رہا تھا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اپنے اسکرین کو کلیئر کر رہا ہوں، CLC لکھ لیتا ہوں تو ڈائریکٹ یہ والا لائن رن ہو جائے گا۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں D = 45 تو یہ والا لائن فوراً رن ہو جائے گا۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بڑا کوڈ ہے، 100 لائن آف کوڈز ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا ہم اس طرح سے کمانڈ لائن میں رن نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اسکرپٹ فائل میں۔ اسکرپٹ فائل میں سارا کوڈ ہم ایک بار لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کوڈ کو ایک ساتھ رن کرتے ہیں۔ MATLAB پھر بھی اس کو لائن بائی لائن ہی جو ہے رن کرتا ہے، لیکن ہمارا کوڈ ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے MATLAB۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اسکرپٹ فائل کو ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں، یہاں سے میں نے لکھ دیا تو یہاں پر میرے پاس کمانڈ ونڈو ادھر نیچے آ گئی، اور یہاں پر میرے پاس ایک اسکرپٹ آ گیا۔ ابھی تک اسکرپٹ کا جو ہے نا نام میرے پاس انٹائٹلڈ ہے، تو میں اس کو اگر سیو کرنا چاہوں تو یہاں سے بھی سیو کر سکتا ہوں، اور Ctrl+S کے ساتھ بھی میں اس کو سیو کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر میں Ctrl+سیو پریس کرتا ہوں، یہاں پر مجھے جو ہے نا نام آ گیا انٹائٹلڈ، اور لائبریری جہاں پر میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو میں جاتا ہوں اور اپنے ڈاکومنٹس میں اس کو سیو کرتا ہوں۔ آلریڈی میرے پاس MATLAB کا جو ہے یہاں پر فولڈر بنا ہوا ہے، یہ کچھ ڈفرینٹ پروگرامز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے اس کو نام دے دیتے ہیں ٹریننگ۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں نے اس کو نام دے دیا ہے، یہ فائل میرے پاس training1 کے نام سے سیو ہو گئی ہے۔ جی دوستو، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں میٹرکس ملٹیپلیکیشن۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن MATLAB میں بہت ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو C++۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سی کا کوڈ۔ اگر ہم سی میں میٹرکس ملٹیپلیکیشن کریں گے تو وہ یہاں پر یہ کوڈ میں نے کلی کاپی کیا ہوا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اتنا جو ہے نا بڑا کوڈ ہے۔ یہ ہیڈر فائلز ہے ہمارے پاس، پھر اس کے بعد جو ہے نا نیم اسپیس ہے، پھر مین پروگرام سٹارٹ ہوا، یہاں پر ویریبل انیشلائزیشن MATLAB میں جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا، ان میں سے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی۔ یہاں پر یوزر کو ایک میسج ڈسپلے کیا گیا ہے کہ روز اور کالمز جو ہے نا آپ انٹر کر دیں، دونوں میٹریسز کی ویریبلز انیشلائز کیے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہم ویلیو سٹور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا دوسرے میٹرکس کے لیے جو ہے نا ویلیو سٹور کی ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ملٹیپلیکیشن کر رہا ہے۔ ملٹیپلیکیشن آپ لوگوں نے دیکھا پریویس کلاس میں بھی اور آج کے لیکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ 1 لائن میں ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر ہمیں 3 لوپس کی ضرورت پڑ رہی ہے، آؤٹر پار لوپ، انر پار لوپ، اور ملٹیپلیکیشن کی ویلیو سٹور کرنے کے لیے پار لوپ۔ مسئلہ یہاں پر ملٹیپلیکیشن کا ہے کہ دیکھو 3 لوپس کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، ملٹیپلیکیشن آپریٹر سے کر رہا ہے جسٹ 1 لائن میں، پھر ڈسپلینگ کا کام الگ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا جو ہے نا لینتھی پروگرام ہے۔ یہاں سے جو ہے نا میں کوئی بھی پروگرام جو ہے نا لکھنا چاہ رہا ہوں، فار ایگزامپل جو ہے نا پریویس کلاس میں جو ہم نے ایک میٹرکس جنریٹ کیا تھا، میٹرکس جنریشن کا کام جو ہے نا یہاں پر ہم کر لیتے ہیں۔ 4x5 کا ہے، صحیح ہے، میرے پاس اے میٹرکس ہے 3 4، یہ میرے پاس پہلا رو ہو گیا ہے۔ اچھا،
आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि लास्ट क्लास में मैंने जो कॉलम्स को अलहदा किया था तो वो मैंने कॉलन से अलहदा किया था। तो वो जी बिल्कुल, आप स्पेस से भी कॉलन को अलहदा कर सकते हैं और आप कॉलन से भी स्पेस को अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक और रो में कॉलन से जो है ना अलहदा करता हूँ, कॉलन को अलग अलग से रिप्रेजेंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है 8, इस रो में मेरे पास जो वैल्यूज है 9, 5, 4, 3, 7, तो ये मेरे पास हो गया है तीसरा रो। अब मैं चौथा रो क्रिएट कर रहा हूँ 2, 7, 4, 3, तो ये मेरे पास जो है ना एक 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स जनरेट करता हूँ। बेसिकली मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स का रूल कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स को कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 5 कॉलम है पहले मैट्रिक्स में, तो दूसरे मैट्रिक्स में मेरे पास 5 रोज होने चाहिए। तो मेरे पास 4 क्रॉस 4 का आंसर जो है ना इसका आएगा। ई मैट्रिक्स मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 रोज है और 4 कॉलम्स होंगे। तो मैं रैंडमली वैल्यू ले लेता हूँ। दूसरा रो भी हो गया है, ये हम आ जाते हैं तीसरे रो की तरफ। ये हो गया तीसरा रो भी। अब हम जाते हैं चौथे रो की तरफ। तो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस जनरेट हो गए हैं, तो एक है 4 क्रॉस 5 और दूसरा है 5 क्रॉस 4 का। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो C इक्वल टू A मल्टीप्लाइड विद B। इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास जितना रिजल्ट है ना होगा वो सब यहाँ पर शो होगा। अब अगर आप देखें ये फाइल अभी तक मेरे पास रन नहीं हुई है, ये सिर्फ मेरे पास लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। अगर आप कमांड विंडो को देखें तो अभी तक यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये मुझे शो करा देगा। ठीक है, अब हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। जो चेंजेस हमने की हैं उसको आप बार बार सेव करते रहें। फिर इसके बाद मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, तो ये देखिए मेरे पास पूरा रिजल्ट कमांड विंडो में आ गया है। ये पहला वाला मेरे पास है ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, ये 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स था। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गया 5 क्रॉस 4 का, और मेरे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स सी इसका आंसर आ गया। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपके पास जो वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस स्क्रिप्ट में मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, तो ये ए, बी और सी। लेकिन ये ए, बी और सी वेरिएबल्स और एक और जो मेरे पास स्क्रिप्ट के अलावा वेरिएबल डी था, तो ये सारे वेरिएबल इधर मेरे पास वर्क स्पेस में पड़े हुए। अब यहाँ से कमांड विंडो में मैं किसी भी वेरिएबल को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ C2 4 और 3 4। इसका क्या मतलब है कि मैं C का 2 से लेकर 4 तक रो, ये दोनों रोज, ठीक है, और 3 और 4 कॉलम, 3 और 4 कॉलम ये वाला है। अब जो है ना मैं ये कमांड विंडो से इसको एक्सेस कर रहा हूँ। देखा मेरे पास अच्छा सॉरी मैंने 2 से स्टार्ट किया था, तो देखा मेरे पास जो है ना करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई है या नहीं है। तो ये काम हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, जब हम डिबगिंग कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स मिसमैचिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और हम उस टाइम पर जो है ना उसको पूरे कोड को जो है ना हम नहीं देख सकते, तो हम स्पेसिफिक वेरिएबल्स को जो है ना यहाँ से कमांड विंडो से एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यूज खुद से अपनी ली थी, लेकिन उन्होंने वैल्यूज यूजर से ले ली थी। तो यहाँ पर जस्ट एक सेमीकोलन मैं लगा दूंगा तो वैल्यूज मेरे डिस्प्ले नहीं होंगे। इसके अलावा एक और फंक्शन है मेरे पास डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले फंक्शन सीआउट की तरह का काम कर रहा है C++ के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका नाम जो है ना डिस्प्ले रखा गया है। सिंपली आप लिख सकते हैं DISP, या पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं DISPLAY। ये एक फंक्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं C को जो है ना डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर C लिख दूंगा और मेरी वैल्यू सारी डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसको बंद करते हैं ताकि हमारा जो है ना हम पता चल सके कि हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर इस फंक्शन को जो है ना मैं रन कर दूं, देखो हमारे पास इस डिस्प्ले ने काम कर दिया। अगर आप इस डिस्प्ले के साथ कोई मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंगल कोट में लिखे, पहले लिखेंगे वेरिएबल को और फिर उसके साथ स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है।
अब अगर मैं इसको रन कर दूं, मेरे पास रिजल्ट आ गया। देखो ये कमांड विंडो में मेरे पास रिजल्ट आ गया, द आंसर इज, सही है, द आंसर इज इक्वल टू साइन आ गया है, और फिर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वैल्यूज में ये वाली वैल्यूज नहीं लेता, बल्कि मैं यूजर से वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो फिर हम क्या से इसको जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। सही है, हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट के नाम से, इनपुट फंक्शन में ए में स्टोर करना चाहता हूँ। इनपुट जो वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, ए वेरिएबल में स्टोर होगा। ए इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर मैं मैसेज जो है ना डिस्प्ले कर रहा हूँ सिंगल कोट में, एंटर द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इस केस में ए जस्ट एक वैल्यू ले सकेगा। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 वैल्यू एंटर करता हूं तो जस्ट 4 लेगा। अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज यूजर से लेनी है तो फिर मुझे लूप लगाना पड़ेगा। लूप अभी हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह लूप वाला प्रोग्राम हम जब लूप करेंगे तो फिर मैं आपको लूप के जरिए से ये करवा दूंगा। वैसे रन कर लेते हैं, यूजर से जो है ना एक वैल्यू ले लेते हैं। चलो एक और वैल्यू भी ले लो, सिंपल वैल्यूज तो हम ले सकते हैं ना। कंट्रोल सी, इसको मैं बी में स्टोर कर रहा हूँ। अब इसको रन कर दो, एंटर। देखो मेरे पास यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है। सही है, वो मुझसे मांग रहा है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर कर दे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटर करता हूँ 67। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 67। अब मुझे कह रहा है कि दूसरे सेकंड, सॉरी मैंने एडिट नहीं किया था, उधर फर्स्ट ही लिखा था, चूंकि मैंने कॉपी किया था। यहाँ पर आप सेकंड लिखेंगे। यहाँ पर दूसरी वैल्यू में जो है ना लेता हूँ, तो मेरे पास जो है ना आंसर आ जाएगा 134। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट भी आप लोगों ने सीख लिया है, प्रोग्रामिंग विद स्क्रिप्ट्स। अब जो है ना हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। मैं एक नया स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आपने डिसाइड करना हो दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये सारी जो है ना एग्जांपल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन एक चेक करनी है कि क्या आप नेशनल आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है या, तो हम सबको पता है कि अगर उम्र आपकी 18 साल से ज्यादा है तो आप आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो हम चलो क्या करते हैं, इनपुट जो है ना हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज किया था, इसी को जो है ना मैं कॉपी करता हूँ। सही है, और यहाँ से ये इसको इधर स्टोर करता हूँ एज में। ठीक है, और एज मैंने यूजर से उसका एज पूछा, यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी, वो एज में स्टोर हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना चाहता हूँ, इफ स्टेटमेंट, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, एक मैसेज डिस्प्ले कर दे एक मैसेज को कि यू आर एलिजिबल फॉर CNIC एंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, तो सबसे पहले हमसे ये पूछेंगे कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में मैटलैब में स्टोर कर रहा हूँ कंडीशन के नाम से, COND मैंने नाम रख दिया है। तो जैसे हमने रन कर दिया तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर यूर एज, तो मैं एज एंटर करता हूँ 17 मैंने एंटर कर दिया, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सही है, अब मैं दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ। सही है, तो मैं कहता हूँ कि यार अब मेरी एज जो है ना 19 ईयर्स हो चुकी है। सही है, इसने मुझे मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते हैं, तो जब मैंने 17 एंटर कर दिया था तो इसने मुझे कुछ नहीं जो है ना बताया था। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमें यूजर को तब भी कुछ बताना चाहिए
जब वो एलिजिबल नहीं है, कोई अच्छा सा मैसेज हमें देना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना हम जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ, हम जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को एंड करने की बजाय एल्स लगा लेते हैं, एल्स फिर डिस्प्ले कर दूं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक अच्छा जो है ना रिस्पांस दे सकते हैं अगर यूजर एलिजिबल नहीं भी है तो। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो है ना चूंकि कमांड विंडो का साइज काफी छोटा हो गया है, तो मैं जो है ना हमारे पास एक कमांड थी लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको बोला था कि CLC से हम अपने कमांड विंडो को क्लियर कर सकते हैं। सही है, क्लियर ऑल से हम तमाम वर्क स्पेस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप बल्कि बेहतर ये है कि आप अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही CLC लगा दिया करें, ताकि आपके सारे जो है ना कमांड विंडो बाकी जितनी वेरिएबल जो है ना क्रिएट हुए हैं ओवरराइड ना। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ तो ये मुझसे एज पूछ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि 17, तो ये मुझे कहता है कि ओ सेड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, इसी तरीके से अब जो है ना मैं दोबारा सेम प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक मतलब एक और बात बता दूं, जब आप एक प्रोग्राम एक मरतबा रन करते हैं तो सेम उसी नाम को आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिख दें तो आपको वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे कि मेरा कंडीशनल का COND मेरे प्रोग्राम का नाम है। सही है, मैंने ये कमांड विंडो में लिख दिया, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन हो गया। ठीक है, बार बार आपको अपने स्क्रिप्ट फाइल पर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं 18 साल का हो चुका हूँ। सही है, यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। अगर आप देखिए कितना आसान है कंडीशनल स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट का C में और MATLAB में तकरीबन एक जैसा है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि C जो है ना एंड जो है ना वो कहता है कि एंड ना हो। सही है, C का जो है ना अगर हम लिखें C का स्ट्रक्चर अगर मैं लिख दूं तो कहता है कि आपके पास ब्रैकेट्स होने चाहिए, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एंडिंग पैरेंथेसिस। सही है, ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, एल्स के बाद भी एल्स के अपने पैरेंथेसिस होने चाहिए, ये मेन फाइल के पैरेंथेसिस थे, और ये है एल्स की, वो इफ के पैरेंथेसिस थे, ये इफ के पैरेंथेसिस हैं, और ये एल्स के पैरेंथेसिस हैं। जस्ट इतना सा डिफरेंस है C में, और जो है ना कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। सही है, MATLAB कहता है कि बस आप एंड पर एक एंड कीवर्ड लिख दें तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। आप देखिए जस्ट मेरे पास एक इफ और एल्स स्टेटमेंट है, और चार लाइन ऑफ कोड मेरा कम हुआ है C के मुकाबले में। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए से कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वस्सलाम।